Hi everyone. So how are you all? So today we are going to solve two medium level questions of lead code daily coding challenge. So let move to those questions that we are going to talk about today. So the first question will be the 10th problem, right? We have done till the ninth problem, yes. Counting words with a given prefix, yes, we have done till that problem. Now today we are going to discuss the new problem. uh, yeah, this question is a little bit interesting, and the the description that is given to us of this problem is little bit tricky. Okay, initially you will find it little bit hard, and the way the question is described is not the proper way, because if you try to understand the question you will get more confused. So I will tell you what is the question, and if the question is clear, then the solution of this question will going to be very easy. The main thing is how you are going to the main thing is the understanding of the question. So let's start it. Okay, हम समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या पहले, है ना? So the question is given like you are given two strings array, words 1, words 2. So you have given two strings array, one is this, right, and another is this. ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत जो पहले हमारा क्वेश्चन गया है उसके जैसा ही है, बट इसमें हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इशू आएगा। अगर हम देखो क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद बताता हूँ मैं आप सबको, ठीक है? So a string b is subset of string a string b, right? A string B is a subset of string A if every letters in B occurs in A including multiplicity. मतलब कि मान लो एक string हमारी B A है, हमारे पास string A है हमारे पास, something like A B, let me comment it out. A string A है हमारे पास str A equals to A B C D B, something like this, and हमारे पास string B है str string B, और ये हमें कुछ गिवन है जैसे कि ए बी ए, समथिंग लाइक दिस। अब हमें बताना है कि ये जो स्ट्रिंग बी है वो सबसेट है ए का या सबसेट ऑफ ए इज ट्रू और फॉल्स, मींस इज स्ट्रिंग बी इज अ सबसेट ऑफ ए of string A. So this will be true. String B will be a subset of string A if each character have the occurrence in the string A including the multiplicity. It means A is coming in string B two times, so here it must be two times. In the string A must be two times, so here we can see A is coming two times, one is here, one is here. A can be any number of times, but like more than two can be possible, but less than two if in a string A we have only one A, right, something like this. So string B is not a subset of string A, right? So this is the meaning of this line. Now uh, we have given the example like WRR is a subset of WRR. Like we have three R's and we only require two R. This is possible, right? W is there, W is there, two R is here, two R must be in string A, and which are here. But is not subset of world, because W is coming one, right, that is right, but R is coming only one time in string this in this string. We require two R or more than two R's. Now string A from words 1 is universal if for every string B in word 2 B is a subset of A. Now this line is very confusing. According to this particular line, the the problem setter want to say that. So initially when I read this line I was thinking that I have to compare each particular string, right? Each particular string, like if this is a subset of
these string given strings or not, but not like this, but this is not like this. तो एक बार समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, देखो, a string a from words 1, string a words 1 की कोई भी string is universal, वो universal तब होगी if for every string b, ये every string in b is a subset of a, b is a subset of a, every string in b is a subset of a. it means मैं पहले इसको कंपेयर करूंगा ई को, मतलब ये मेरी एक स्ट्रिंग, इसको चलो इसको ले लेते हैं, वहां पे एक सिंगल कैरेक्टर है, हम इसको इस वाले एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे एलसी है, आई विल चेक एलसी, आई विल चेक दिस फर्स्ट स्ट्रिंग, आई विल कंपेयर इट विद ईच एंड एवरी कैरेक्टर, sorry, not with each and every. First of all, I will check LC with Amazon, then EO with Amazon. If both are present in Amazon, then Amazon is my universal string. Means both strings are subset of this particular string. Then only we can say Amazon is a subset of, or we can say a universal string. For example, here we are getting lead code. So in a lead code, we have L, yes, we have C, yes, we have E, yes, we have O, yes. अब चीज ये है, देखो, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक और ओ होता, ठीक है, यहाँ पे एक और ओ होता, मान लो कि एक टेस्ट केस लेते हैं हम, जहां पर, हाँ हमने लिया हुआ है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ई डबल ओ एंड एल ओ। तो इस केस में क्या होगा कि ई डबल ओ एंड एल ओ, ये कौन सी वाली सेटिस्फाई कर रही है, ई डबल ओ एल ओ, कौन सी वाली चीज सेटिस्फाई कर रही है, देखो, ई डबल ओ एल ओ, एक तो लीड कोड सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि एल ओ ये वाली स्ट्रिंग तो सेटिस्फाई हो जाएगी, बट जब लीड कोड इससे कंपेयर करेंगे, मतलब इसको इसका सबसेट ढूंढेंगे हम लीड कोड के अंदर, तब नहीं मिलेगा। मतलब हम देखेंगे भाई एक ही है, बट दो ओ होने चाहिए हमारे पास, वो नहीं है। तो पूरे सारी इंडिविजुअल जो हमारी स्ट्रिंग्स है वर्ड्स 2 में, वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। हम इसे कंबाइन भी नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ड्स की सारी स्ट्रिंग्स को कंबाइन भी नहीं कर रहे हैं, हम पर इंडिविजुअल को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि वो इसका सबसेट है नहीं, वो सारी सबसेट होनी चाहिए, सारी की सारी स्ट्रिंग सबसेट होनी चाहिए हमारी वर्ड्स 1 में, तभी वो यूनिवर्सल बनेगी। अब जैसे इस वाले में सिर्फ गूगल ही हमारा एक यूनिवर्सल बन सकती है, बाकी कोई नहीं बन सकती। और यहाँ पे अगर मैं सी कर दूं, ठीक है, यहाँ पे सी कर देते हैं, यहाँ पे एल है, ओ है, तो इस केस में कोई भी नहीं बनेगी, क्योंकि गूगल में सी है ही नहीं, ठीक है। इफ यू वांट टू चेक व्हेन वी कैन रन इट एंड यू कैन चेक, वी आर गोइंग टू गेट एक्सपेक्टेड एज अ सी, not this one, we have to check case 4. In case 4, our output is empty string, empty array, and expected is also empty array. तो समझ आया क्या हो रहा है, वही करना है कि हमें हर एक का चेक करना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं, और सारे के सारे सबसेट भी होने चाहिए। अब इसके पीछे ट्रिक क्या है, हम देखो, एक तो भाई नेव अप्रोच है, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकती है कि हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए एक स्ट्रिंग उठाएंगे और वर्ड्स 2 की हर एक के लिए चेक करेंगे कि भाई वो इसका सबसेट है या नहीं, और सबसेट देखने के लिए हमें उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी पड़ेगी, है ना, समझ रहे हो, कि ये इसके अंदर है या नहीं, ये मिल गया तो फिर दूसरा नंबर है या नहीं, ये मिल गया तो तीसरा नंबर है या नहीं, तो या तो इसे हम उसमें रख ले, इसको हम मैप के अंदर रख सकते हैं, या फिर इसको हम मैप के अंदर रख सकते हैं, तो थोड़ा टिपिकल होगा। और सब इसको फिर हर एक, क्योंकि टिपिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमेशा कॉन्स्टेंट्स देखो, यहाँ पे कंस्टेंट गिवन है 10 पावर 4, वर्ड्स 1 की लेंथ भी और वर्ड्स 2 की लेंथ भी 10 पावर 4 है। इट मीन्स 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 4 इंटू 10 इंटू 10, क्यों इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि वर्ड्स 1 की लेंथ भी है, पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग की लेंथ भी है, और वर्ड्स 2 के पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लेंथ भी है। हम फिर ये 10 पावर 10 जा रहा है, 10 पावर 10 का टाइम कैपेसिटी पहुंच जाएगी अगर हम नेव प्रोसीड करेंगे, तो मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे काम नहीं आने वाला। अब कौन सी अप्रोच लगाएंगे हम, देखो, अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच काम नहीं आ रहा है, सो देयर कैन बी मोर वेज, लाइक देयर कैन बी समथिंग इन दिस प्रॉब्लम, देयर कैन बी समथिंग।
अब वो समथिंग क्या है, वही हमें सर्च करना है कि हम इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कंज्यूमिंग की जगह टाइम एफिशिएंट कैसे बनाए इस एल्गोरिथम को। ठीक है, हमें समझ आ गया कि करना क्या है। हमें सिंपली हर एक उसको चेक करना है। ठीक है, हर एक स्ट्रिंग, वर्ड्स टू की स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो किसी किसी भी उसकी किसी भी गिवन स्ट्रिंग की, वो वर्ड्स वन की स्ट्रिंग की सबसेट है या नहीं। और ये सब सारी अगर सेटिस्फाई कर रही है, सारी स्ट्रिंग सेटिस्फाई कर रही है, तो वो पार्टिकुलर स्ट्रिंग हमारी यूनिवर्सल स्ट्रिंग है। अब देखो, एक चीज समझना, अब हम सबको चेक करने जाएंगे तो भाई ये तो टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और क्या कर सकते हैं, अगर हम मैप यूज कर ले तो इसमें मैप के अंदर ये स्ट्रिंग्स स्टोर करके रख ले, समझ रहे हो। फिर उस मैप की एक कॉपी हम यूज करें और इसको बस ट्रावर्स करें, फिर इसको ट्रावर्स करें, फिर इसको ट्रावर्स करें। सो उस केस में टाइम कॉन्सेप्ट क्या होगी, पहले हमें इसको मैप में स्टोर करना पड़ेगा। वो कितना टाइम लेगा, वो लेगा 10 पावर 10, 10 पावर 4 × 10, वो इतना टाइम लेगा। फिर हम इसे ट्रावर्स करेंगे सेम वे में, तो वो कितना टाइम लेगा, 10 पावर 4 × 10 मीन्स मैक्सिमम टाइम कॉन्सेप्ट विल बी 10 पावर 5, विच इज ओके, इन विच इट मीन्स 10 पावर 5 कैन बी एक्सेप्टेबल। तो अब हम स्टोर कैसे करने वाले, अगर हम हर एक की फ्रीक्वेंसी चेक करने वाले हैं। अब एक चीज देखना, हमें पर्टिकुलर स्ट्रिंग का चेक करना है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग, अब हम हर एक स्ट्रिंग के लिए अलग मैप तो नहीं बना सकते ना, है ना। कि भाई इस स्ट्रिंग के लिए एक मैप बना लिया, इस स्ट्रिंग के लिए एक मैप बना लिया, फिर हम उनको चेक कर रहे हैं इसके साथ, ये नहीं कर सकते। फिर वो हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देगा। तो करना क्या है, देखो, हमें कुछ नहीं करना, वर्ड्स टू की जो भी जितनी भी स्ट्रिंग है ना, उन स्ट्रिंग को कंबाइन करो। कंबाइन मत करो, तुम यहाँ से ट्रावर्स, उसमें मतलब हर एक स्ट्रिंग को ट्रावर्स करना स्टार्ट करो। जब उसे ट्रावर्स करोगे तो हमें क्या करना है कि हमें हर एक कैरेक्टर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसको लेते हैं, यहाँ पे ए था ना हमारे पास, ये ड्रेस किस में जाते हैं, यहाँ पे ए था हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे हम एल ले लेते हैं, एल। अब देखो, हमें हर एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग उठानी है, वर्ड्स टू की एक स्ट्रिंग उठानी है, उसके अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो उसे हम लेके चलेंगे। जैसे कि ए की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें कितनी है, एक, तो हम एक लेके चलेंगे भाई हमारा। तो हम एक मैप बना के चलेंगे ऐसे कि भाई एमपी हमारा एक मैप रहेगा, जिसके अंदर क्या करेंगे हम कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 = 1 फॉर नाउ। फिर नेक्स्ट टाइम हम कहेंगे भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ओ। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ओ 3 नहीं होगी, इसकी और इसकी, इसकी नहीं, इस स्ट्रिंग में कितनी है, इस स्ट्रिंग में कितनी है, 2। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओ = 2। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एल कितनी है, इस स्ट्रिंग, पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितनी है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितनी है, इस वाली में 1। देन ये इसका काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको ट्रावर्स करना स्टार्ट करेंगे ना, तो हम क्या चेक करने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में इसे ट्रावर्स करते टाइम अगर किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो यहाँ पे अपडेट होगा। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 2L है, ठीक है, मैंने पहला एल्स किया, भाई ए की फ्रीक्वेंसी तो भाई एक्सेप्टेबल है, वो हम चेंज नहीं करने वाले। एक ओ है, फ्रीक्वेंसी 2 है, तो भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे ओ को अपडेट नहीं करेंगे। अब देखेंगे एल, भाई एल तो एक और आ गया, हमारी ए की स्ट्रिंग के अंदर 2L है, मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एल इन अ सिंगल स्ट्रिंग इज 2। तो हम जो मेन वाली मैप है उसके अंदर अपडेट कर देंगे 2, ठीक है। तो ये हमें कुछ ऐसे करना होगा। अब जब यह मेन मैप जो बन गया हमारे पास कि भाई हर एक कैरेक्टर की पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है ना, वही हमें टोटल की फ्रीक्वेंसी नहीं काउंट करनी है, हमें पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर किसी भी कैरेक्टर की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है और सारे कैरेक्टर लेने हैं। ये भी नहीं है कि भाई यहाँ पे तो ए है ही नहीं, हम एक तो अब एक हटा देंगे, नहीं, ए हमारा आया तो है ना। तो वैसे करना है। अब ये हमारे पास मेन जो मैप बन गया है, बस इसको यूज करते हुए हर एक को ट्रावर्स करो, इसकी कॉपी बनाओ पहले। इसकी कॉपी कैसे बनाएंगे, जावा के अंदर बताए, और देखो जावा के अंदर तो रेफरेंस बाय एड्रेस होता है, रेफरेंस बाय वैल्यू वाली कोई चीज नहीं है। नहीं, रेफरेंस बाय मैप जो है, रेफरेंस कॉपी बाय, जब हम कॉपी करेंगे तो डीप
वो शैलो कॉपी होती है, ठीक है। सो इसमें एक तरीका होता है कि हम मैप के अंदर क्या कर सकते हैं कि भाई जब भी तुम ये करो इसके अंदर, अगर हम जावा 11 यूज़ कर रहे हो ना, तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि न्यू हैश मैप, और यहाँ पे आप अपना एमपी पास कर दो, तो ये हमारा एक शैलो कॉपी बन जाता है। अब इस वाले को अपडेट करना, क्या करना कि इसको ट्रावर्स करना, जो भी करेक्टर आ रहा है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से माइनस कर दो। जब किसी फ्रीक्वेंसी कोई जीरो हो जाए तो उसे यहाँ से रिमूव कर दो। जैसे ए आया, ए को रिमूव कर दिया हमने और ए को डिक्रीज करके, ठीक है। अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई, और एंड में चेक कर लो कि भाई अगर मेरा मैप का साइज जीरो है तो मतलब ये हमारा यूनिवर्सल स्ट्रिंग है, और इसको हम एक एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। सिंपल है, यही करना है, ठीक है। समझ आया, इजी है। तो तो यही करना है और ट्राई करना। अगर जब भी ना हो तो मैं एक बार अपना जो सॉल्यूशन है उसे ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ धीरे धीरे, फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि कैसे करना है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। सो समझ आया, तो थैंक यू एवरीवन। जो भी अभी 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 जो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा ना इसका, हाँ मैं दिखा देता हूँ कौन सा वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर ये 12 है ना, आई थिंक, या क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी ये 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी 15 मिनट की होगी। ओके ओके, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।